السلام علیکم دوستوں، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پاس سے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان شہاب الدین غوری اور ہندوستان، ایپیسوڈ نمبر 24۔ دریائے سرسوتی کے کنارے جس حویلی کے اندر کوچ کے سابق راجکمار دیوداس کا قیام تھا، وہ اس حویلی کے باہر کھڑا تھا کہ ایک طرف سے اس کا ماموزاد سنگرام اپنے گھوڑے کو سرپور دوڑاتا ہوا آیا۔ دیوداس کے قریب آ کر وہ اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ سنگرام کی اترتی ہی دیوداس بڑی بے چینی اور بڑی بےتابی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ پھر اس نے سنگرام کو مخاطب کیا، میرے بھائی، جس تجویز پر تم عمل کرنا چاہتے تھے اس کا کیا بنا؟ جواب میں سنگرام خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، دیوداس میرے بھائی، میں نے اپنے جن آدمیوں کو ایبا کی بیوی اور راجکماری کمار دیوی کے بھائی رامدیو کو قتل کرنے کے لیے کہا تھا، وہ یہ دونوں کام سر انجام نہیں دے سکے، اس لیے کہ جنگ کے دوران اپنے لشکر سے نکل کر دشمن کی لشکرگاہ کے بیچ ہو کر دشمن کے پڑاؤ میں جانا ناممکن تھا، اور اگر وہ دائیں یا بائیں طرف سے لمبا چکر کاٹتے ہوئے مسلمانوں کے پڑاؤ کی طرف جاتے تو ایسا انہیں گھوڑوں پر سوار رہ کر کرنا پڑتا، اور جب وہ گھوڑوں پر سوار مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوتے تو یقیناً وہ پکڑے جاتے اور ان کا خاتمہ کر دیا جاتا۔ اس طرح وہ اس کام کو سر انجام نہیں دے سکے، اور پھر اپنے لشکر سے نکل کر اتنا لمبا چکر کاٹ کر وہ پیدل بھی مسلمانوں کی پڑاؤ کی طرف نہیں جا سکتے تھے، جس کی بنا پر ان کی طرف سے یہ تو کام ادھورا رہ گیا۔ لیکن بھگوان تمہاری مدد پر آمدہ ہے، اس لیے کہ جس وقت مسلمانوں کی جنگ عین عروج پر تھی، اس وقت لڑکی کے لواحقین میں سے کوئی مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوا اور ایبا کی بیوی کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ خبر مجھے ابھی ابھی ملی ہے۔ دوسری بری خبر جو میں تمہارے لے کر آیا ہوں وہ یہ کہ ہندوستان کے لشکر کو بدترین شکست کی خبر تو مل ہی چکی ہے، پر اب جو خبر میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ دہلی کا راجہ گوبند رائے جنگ کے دوران مارا جا چکا تھا۔ کچھ اور راجہ بھی جنگ میں کام آئے۔ ہمارے راجہ پرتھوی راج نے جنگ سے بھاگ کر اجمیر کی طرف جانے کی کوشش کی، لیکن دریائے سرسوتی کے کنارے پکڑا گیا۔ اسے مسلمانوں کے سلطان کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کی گردن مار دی گئی۔ یہ تو ایک بری خبر ہے، بہرحال اتنی بری بھی نہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے جو ہندوستان کے متحد لشکر کو شکست ہوئی وہ اس سے بھی بڑی اور بری خبر تھی۔ تاہم تمہارے حق میں ایک دوسرا کام بھی اچھا ہو گیا بھائی، جیسا کہ میں نے اور تمہیں تجویز کیا تھا کہ راجکماری کمار دیوی کے بھائی رامدیو کو قتل کر دے اور کمار دیوی سے یہ کہیں کہ رامدیو نے ایبا کی بیوی کو ہلاک کیا تھا، اور جواب میں ایبا نے رامدیو کو قتل کر دیا۔ اب نہ میرے آدمی ایبا کی بیوی کو ہلاک کر سکے، نہ رامدیو پر حملہ ور ہو کر اس کا خاتمہ کر سکے، اس لیے کہ جنگ کے دوران رامدیو ہندوستان کی دوسرے راجاؤں کے بیچ اپنے باپ کے ساتھ تھا، اور وہاں اس پر حملہ ور ہو کر اس کا خاتمہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ یہاں یہ بھی لگتا ہے کہ تمہارا کام بھگوان ہی کی طرف سے ہو گیا ہے۔ جنگ کے دوران رامدیو بری طرح زخمی ہوا ہے۔ شکست اٹھانے کے بعد اس کا باپ اسے اور اپنے بچے کچے لشکریوں کے ساتھ نہر والا کی طرف بھاگ گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ نہر والا جا کر رامدیو بچے گا نہیں، موت کی گہری نیند سو جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سنگرام جب خاموش ہوا تو الجھن بھری آواز میں دیوداس اسے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، سنگرام میرے بھائی، مجھے تمہارے اس منصوبے کی کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ ایک بے بنیاد سا منصوبہ ہے جس کی وجہ سے میرا کام ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ چلو تمہارے کہنے پر جا کر ہم راجکماری کمار دیوی سے ایک کہہ دیتے ہیں کہ ایبا نے ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی، اور اس جنگ کے دوران اس کے بھائی رامدیو نے ایبا کی بیوی کو قتل کر دیا، اور جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایبا نے رامدیو کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تم یہ کہہ دو کہ یہ داستان کمار دیوی کو سنانے کے بعد ہمارے لیے بہتری اور فائدہ کا کون سا پہلو نکلے گا؟ جواب میں سنگرام مسکرا کر کہنے لگا، تم بھی مورکھ کے مورکھ ہی رہے، ہمارے لیے فائدے ہی فائدے، بہتری ہی بہتری ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سنگرام رکا، کچھ سوچا، پھر دیوداس کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، دیوداس، ایبا کی بیوی کو تو چلو کسی نے قتل کر دیا، میرے خیال میں کسی دشمنی کی بنا پر ماری گئی ہوگی، تو ہمارا کچھ کام ہو گیا۔
वरना ऐबा पर हमलावर होकर कुमार देवी की ख्वाहिश के मुताबिक उसे कत्ल करना मेरे भाई अंधे कुएं में छलांग लगाने के मुतरादिफ है। वो मुसलमानों के लश्कर के एक हिस्से का सालार है। मुसलमानों के लश्कर में दाखिल होकर उस पर हमलावर होना तो बहुत दूर की बात, उसको दूर से देखना भी अपनी मौत को आवाज देना है। लिहाजा जो हालात अब तक रूनुमा हो चुके हैं उनके मुताबिक हम राजकुमारी कुमार देवी से कहते हैं कि ऐबा ने शादी कर ली थी। अगर हम ऐबा की शादी का जिक्र करेंगे तो याद रखना कुमार देवी के जहन पर यह पहली ज़रब होगी। ये कुमार देवी ऐबा से मोहब्बत करती थी, उसे चाहती थी, उसे अपनी जिंदगी अपने जीवन का साथी बनाने का फैसला कर चुकी थी। जब उसे ये खबर होगी कि उसको नजरअंदाज करते हुए ऐबा ने किसी लड़की से शादी कर ली होगी तो वो ऐबा के खिलाफ उसकी नफरत की पहली वजह होगी। इसके बाद जब कुमार देवी को हम दास्तान का दूसरा पहलू सुनाएंगे और ये कहेंगे कि जब उसके भाई रामदेव को खबर हुई कि ऐबा ने उसकी बहन कुमार देवी से शादी करने के बजाय किसी और लड़की को अपना हमसफर बना लिया है, तो रामदेव ऐबा की बीवी पर हमलावर हुआ, खुद उस पर हमलावर हुआ या अपने साथियों के जरिए किसी न किसी तरह उसने ऐबा की बीवी को कत्ल करवा दिया। और ऐबा को जब खबर हुई कि रामदेव ने उसकी बीवी को मौत के घाट उतार दिया है तो ऐबा बड़े राजदाराना अंदाज में किसी न किसी तरह रामदेव पर वारिद हुआ और उसे कत्ल करके रख दिया। कुमार देवी की दिल में ऐबा के खिलाफ नफरत पैदा करने पर ये दूसरी वजह हो जाएगी। कुमार देवी को जब खबर होगी कि ऐबा ने उसे ठुकराकर किसी से शादी कर ली थी और एक किसी ने उसके भाई रामदेव को भी मौत के घाट उतार दिया है, तब ऐबा से उसकी मोहब्बत और प्रेम तो खत्म हो जाएगा बल्कि उससे नफरत करने लगेगी और इसी नफरत से देवदास तुमने फायदा उठाना है। कुमार देवी ने तुम्हारे सामने ये शर्त पेश की थी कि अगर तुम ऐबा को कत्ल कर दो तो वो तुमसे शादी कर लेगी। ये शर्त इस बात की भी निशानदही करती है कि ऐबा और राजकुमारी के ताल्लुकात खराब हो चुके हैं और वो उसको छोड़कर शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर में शामिल हो गया था। इसी वजह से वो उसके खिलाफ हो गई होगी। बहरहाल मामला कुछ भी हो, हमें उससे कोई गर्ज व गायत नहीं। अब तुमने कुमार देवी को सारी दास्तान सुनाने के बाद कहना कि ऐबा पर हाथ डालना कोई आसान काम नहीं। लिहाजा इन हालात में एक ही सूरत सामने आती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, इसके बाद दोनों मियाँ बीवी को मुनासिब मौका जानकर ऐबा पर हमलावर होंगे और उसे मौत के घाट उतार देंगे। मेरे ख्याल में अपने भाई के कत्ल का सुनकर कुमार देवी तुमसे शादी करके ऐबा से इंतकाम लेने पर रजामंद हो जाएगी। बस इसे अपनाने का फिलहाल यही तो एक तरीका है, और अगर वो ना मानी तो फिर उसे जाल में फंसाने के लिए कोई और तरीका कार इस्तेमाल करेंगे। संग्राम जब खामोश हुआ तब किसी कदर बेजारी और उकताहट का इजहार करते हुए देवदास कहने लगा, उस कुमार देवी ने खामखा में हमारे लिए उलझने पैदा करके रख दी है। अगर उस बहाने को इस्तेमाल करने के बाद भी वो मुझसे शादी पर आमदा ना हुई तो मैं उसका किस्सा ही पाक कर दूंगा। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। मैं उसकी गर्दन काट कर रख दूंगा और उसे पहले धमकी दूंगा अगर वो मुझसे शादी पर आमदा ना हुई तो फिर कत्ल होने के लिए तैयार रहे। देवदास की इस गुफ्तगू के जवाब में संग्राम कुछ कहना ही चाहता था कि एक तरफ से संग्राम का बाप आता दिखाई दिया। दोनों चुप हो गए थे। इसके बाद खामोशी से हवेली के अंदर चले गए थे। कुमार देवी बेचारी पिंजरे में बंद किसी बेबस पंछी की तरह उस हवेली के कमरे में परेशानी के आलम में एक नशिस्त पर पड़ी हुई थी। कमरे में देवदास दाखिल हुआ। उसे देखते ही कुमार देवी संभल कर बैठ गई। आहिस्ता आहिस्ता देवदास आगे बढ़ा और कुमार देवी के सामने एक नशिस्त पर बैठ गया। कुछ देर तक कमरे में खामोशी रही। फिर इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार करते हुए देवदास कहने लगा, कुमार देवी, मैं तुम्हारे लिए दो खबरें लेकर आया हूँ, एक अच्छी और एक बुरी। तुम्हारे लिए अच्छी खबर यह है कि ऐबा, जिसे किसी दौर में तुम पसंद करती थी और तुमने उसे अपना जीवन साथी बनाने का तहिया कर लिया था, वही ऐबा जिसने कभी तुमसे तेगजनी और तीरंदाजी का मुकाबला जीता था, उसने एक लड़की से शादी कर ली थी। अब तुम्हारे यहाँ क़याम के दौरान एक बार फिर मुसलमानों का सुल्तान हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ। जिस तरह पहले तराइन के मैदानों में जंग हुई थी, इसी तरह अब भी फिर तराइन के मैदानों में ही जंग हुई है। इस जंग में की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि इस जंग में हिंदुस्तान के सारे राजाओं को मुसलमानों के सुल्तान के मुकाबले में बदतरीन शिकस्त उठाना पड़ी है। इस जंग के सिलसिले में तुम्हारे लिए जो अच्छी खबर लेकर आया हूँ वो ये है कि तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई रामदेव ने भी इस जंग में हिस्सा लिया था। रामदेव को शायद खबर हो गई थी कि ऐबा जिससे तुम शादी करना चाहती थी उसने किसी और लड़की से शादी कर ली है। उसे शायद इस फेल का बड़ा सदमा हुआ, लिहाजा उसने कुछ अपने आदमी मुकर्रर किए जिन्होंने मुसलमानों के पड़ाव में दाखिल होकर ऐबा की बीवी को कत्ल कर दिया। यहाँ तक कहने के बाद देवदास रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा था, कुमार देवी, ये तो तुम्हारे लिए एक खबर है। मैं समझता हूँ ये तो खबर तुम्हारे लिए अच्छी होगी। अब दूसरी खबर जो मैं कहने लगा हूँ वो तुम्हारे लिए बुरी खबर है। अब बुरी खबर कुछ यूं है कि ऐबा को पता चल गया था कि उसकी बीवी को कत्ल करने वाला तुम्हारा भाई रामदेव है।
लिहाजा जंग के बाद जिस वक्त हमारे लश्कर शिकस्त उठाकर भागे और मुसलमानों ने हमारे लश्करों का ताक़ुब किया, तो उस ताक़ुब के दौरान ऐबा ने तुम्हारे भाई रामदेव को अपना निशाना बनाया और रामदेव को उसने कत्ल कर दिया। यहाँ तक कहने के बाद देवदास रुका, कुछ सोचा, उसके बाद पहले की निस्बत ज्यादा नरमी में वो कुमार देवी को मुखातब करते हुए कह रहा था, कुमार देवी, तुमने मेरे सामने ये शर्त पेश की थी कि अगर मैं ऐबा को कत्ल कर दूं तो तुम मुझसे शादी कर लोगी। अब मैं तुम पर यह इंकिशाफ करूंगा कि ऐबा को कत्ल करना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए कि वो सुल्तान शहाबुद्दीन के लश्कर के बेहतरीन सालारों में से एक है और मुसलमानों के लश्कर में दाखिल होकर मुसलमानों के किसी सालार पर हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात, उसे मैली नजर से देखना अपने आप को मौत के मुंह में डालने के मुतरादिफ है। कुमार देवी, इन हालात में मैंने ये फैसला किया कि फिलवक्त मैं और तुम शादी कर लेते हैं। इसके बाद हम दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से ऐबा की ताक में रहेंगे और जब भी मुनासिब मौका मिला तो दोनों मिलकर ऐबा को मौत के घाट उतार देंगे। इस तरह तुम्हारी शर्त शादी के बाद भी पूरी हो सकती है। कुमार देवी, अब मेरी इस पेशकश को ठुकराने की कोशिश ना करना, इसलिए कि मैंने अब अपनी ख्वाहिश की तश्कील का इंतजार करते करते थक जा रहा हूँ। देवदास जब खामोश हुआ तब बड़ी फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कुमार देवी कहने लगी, पहले मेरे चंद सवालों को जवाब दो, इसके बाद जो कुछ तुमने कहा उसका जवाब मैं तुम्हें दूंगी। मेरा पहला सवाल है कि ये बताओ कि तराइन के मैदान में कितने राजा सुल्तान शहाबुद्दीन से टकराए। बेहद दुख और तासुफ का इजहार करते हुए देवदास कहने लगा, लगभग 150 हिंदुस्तान के राजाओं ने शहाबुद्दीन पर हमला किया, लेकिन हिंदुस्तान के राजाओं की बदकिस्मती के सुल्तान ने हिंदुस्तान के सारे राजाओं को शिकस्त दी। हालांकि मुसलमानों की लश्कर की तादाद लगभग 1 लाख से कुछ ऊपर थी, जबकि हिंदुस्तान के लश्कर की तादाद 3 लाख से भी ऊपर थी। फिर मजीद ये कि 3000 तरबियत याफ्ता हाथी भी लश्कर में शामिल थे। इसके बावजूद भी हमारे लश्कर को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। देवदास के खामोश होने पर कुमार देवी ने दूसरा सवाल दाग दिया, ये कहो कि मेरा भाई तो जंग में काम आ गया, मेरे बाप का क्या बना। देवदास ने गौर से कुमार देवी की तरफ देखा और कहने लगा, तुम्हारे भाई तो जंग में काम आ गया और तुम्हारा बाप अभी अपने बच्चे कुचे लश्कर को लेकर नहर वाला जा चुका है। कुमार देवी ने अब तीसरा सवाल किया, अजमेर के राजा पृथ्वीराज और उसी जैसी हैसियत के बड़े बड़े राजाओं का क्या बना। इस बार देवदास पहले से भी ज्यादा दुख भरे अंदाज में कहने लगा, दिल्ली के राजा गोविंद राय को मुसलमानों ने जंग के दौरान ही हिलाक कर दिया था। गोविंद राय के अलावा और बहुत से राजा जंग के दौरान मारे गए थे। फिर जब हिंदुस्तान के लश्कर को शिकस्त हुई तो अजमेर का राजा पृथ्वीराज भाग खड़ा हुआ, लेकिन इसकी बदकिस्मती के दरियाए सरस्वती के किनारे ताक़ुब करने वाले मुसलमानों ने उसे जा पकड़ा। मुसलमानों के सुल्तान के सामने पेश किया गया और सुल्तान ने उसकी गर्दन मार देने का हुक्म दे दिया। अब पृथ्वीराज इस दुनिया में नहीं है। ये सारे हालात जानने के बाद कुछ देर तक कुमार देवी की गर्दन दुख और गम में झुकी रही, कुछ बोल न सकी, इंतहा दर्जे की फिक्रमंद हो गई थी। इसके बाद वो कुछ संभली, अपनी गर्दन सीधी की और अपने सामने बैठे देवदास की तरफ देखा, फिर कहने लगी, देवदास, जो हालात तुमने सुनाए हैं वो सामने रखते हुए मैं खुद अकेले ऐबा को कत्ल करूंगी। कुमार देवी के इन अल्फाज पर देवदास चौंका, अपने अल्फाज पर जोर देते हुए कहने लगा, कुमार देवी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम कैसे और किस तरह अकेले ऐबा पर हाथ डाल सकती हो? क्या तुम मुसलमानों के लश्कर में दाखिल होंगी? वहां अगर तुम ऐबा पर हमलावर हो गई तो क्या समझती हो कि तुम बचकर वहां से निकल सकोगी? मैं तो समझता हूँ कि वहां तुम्हें ऐबा पर हमलावर होने का मौका ही नहीं मिलेगा। तुम्हें पहले ही गिरफ्तार करके ऐबा के सामने पेश किया जाएगा, जो तुम्हारी गर्दन काट कर रख देगा। देवदास जब खामोश हुआ तो कुमार देवी के चेहरे पर तल्ख सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, कहने लगी, मैं ऐबा को किसी तरीके से कत्ल करूंगी। अगर तुम उसे नहीं मार सके तो मैं तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इसलिए कि अब वो मेरे भाई का कातिल है। मैं मुसलमानों के लश्कर में दाखिल होकर उस पर हमलावर नहीं होंगी। सुनो देवदास, मैं ऐबा से शादी कर लूंगी। देवदास चौंकने के अंदाज में अपनी जगह पर उछल पड़ा था, कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो? कभी कहती हूँ कि तुम उसे कत्ल करोगी, कभी कहती हूँ कि तुम उसे शादी कर लोगी। मुझे तुम्हारी बातों की कोई समझ नहीं आई। तंजिया से अंदाज में कुमार देवी मुस्कुराए कहने लगी, मेरी बातें साफ और सीधी है, तुम्हें समझ आ जानी चाहिए। देखो, मैं मुसलमानों के लश्कर में दाखिल होने के बाद ऐबा पर मौका वाकई हमलावर नहीं हो सकती। मैं यहाँ तक कहते कहते कुमार देवी रुक गई। फिर दोबारा उसने देवदास को मुखातब किया, जो कुछ मैं कहना चाहती हूँ इससे पहले ये बताओ कि मुसलमानों का लश्कर इस वक्त कहाँ है? देवदास ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, हमारे लश्कर को शिकस्त देने के बाद मुसलमानों का लश्कर अभी तक तराइन के मैदानों में ही पड़ाव किए हुए है। हमारे पड़ाव में बहुत सा सामान था जो उनके हाथ लग गया है। अभी तक तो मेरे ख्याल में वो सामान ही को सिमट रहे होंगे। देवदास जब खामोश हुआ तब कुमार देवी कहने लगी, अगर मुसलमानों के लश्कर ने अभी तक तराइन के मैदानों में ही पड़ाव किए हुए है तब मेरा काम आसान हो गया है।
देवदास, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे रिहा कर दो, इस हवेली से निकाल दो। मैं मुसलमानों के लश्कर में दाखिल होंगी, ऐबा से मिलने की ख्वाहिश का इजहार करूंगी, ऐबा से शादी कर लूंगी और शादी के बाद जब वो पहली रात मेरे पास आएगा तो मैं उसी वक्त उसका काम तमाम करके मुसलमानों के लश्कर से भाग खड़ी होंगी। कुमार देवी जब खामोश हुई तब उसकी तरफ नापसंदगी से घूरते हुए देवदास कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ना ही ऐसा मुमकिन है। मैं तुम्हें मुसलमानों के लश्कर में दाखिल होकर ऐबा से शादी करने के लिए यहाँ से नहीं निकालूंगा। अब तुम्हारे सामने एक ही रास्ता है कि मुझसे शादी कर लो, इसके बाद मैं और तुम दोनों मिलकर ऐबा को इस अंजाम तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा तुम्हारे सामने कोई रास्ता नहीं है। ये मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, इसके बाद समझ लेना मैं तुम्हारे खिलाफ कोई इंतकामी और तादीबी कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाऊंगा। कुमार देवी फिक्रमंद हो गई थी। कुछ देर सोचा, फिर देवदास को मुखातब करके कहने लगी, अगर ये मामला है तो फिर मुझे 1-2 दिन सोचने का मौका दो, इसके बाद मैं तुम्हें आखिरी जवाब दूंगी। देवदास कुमार देवी के इन अल्फाज से किसी हद तक मुतमईन हो गया था। फिर वो वहां से उठकर चला गया था। ऐबा एक रोज अपने चंद मुसलह दस्तों के साथ दरिया चिनाब के किनारे एक बस्ती में दाखिल हुआ। बस्ती का जो पहला शख्स उसके सामने आया, उसने हाथ के इशारे से रोका, फिर उसे मुखातब करके कहने लगा, मेरे अजीज, मैंने तुम्हारी बस्ती के सरदार धर्मदत्त के यहाँ जाना है, क्या तुम उसकी रिहाइशगाह तक मेरी रहनुमाई कर सकते हो? वो शख्स जिसे ऐबा ने रोका था, वो ऐबा और ऐबा के साथ इस कदर मुसलह जवानों को देखकर डरा और सेहिम सा गया था। बड़ी लिजाजत में ऐबा की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर आप धर्मदत्त से मिलना चाहते हैं तो आप लोग मेरे साथ तशरीफ लाइए, मैं उसकी रिहाइशगाह तक आपको ले चलता हूँ। इसके साथ ही वो शख्स आगे आगे हो लिया था। एक मकान के आगे वो शख्स रुक गया और ऐबा की तरफ देखते हुए कहने लगा, ये धर्मदत्त की रिहाइशगाह है और यही उस बस्ती का सरदार भी है। ऐबा ने उसका शुक्रिया अदा किया, जिस पर वो शख्स इजाजत लेकर चला गया। तब ऐबा घोड़े से उतरा और दरवाजे पर उसने दस्तक दी। थोड़ी देर बाद जब दरवाजा खुला तो दरवाजा खोलने वाला धर्मदत्त का बेटा और शुंगुल का भाई गुलचंद था। गुलचंद और धर्मदत्त दोनों बाप बेटा चूंकि पहले लश्करगाह में ऐबा से मिल चुके थे, लिहाजा दरवाजा खोलते ही गुलचंद ऐबा को पहचान गया और बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, मुसलमानों के सालार, आप यहाँ हमारी बस्ती में और वो भी हमारे घर के दरवाजे पर, खैरियत तो है? यहाँ तक कहने के बाद गुलचंद रुका, फिर एकदम से दोबारा बोल उठा, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, घोड़े को बाहर ही बांध दीजिए। उसके बाद गुलचंद ने जब घर से बाहर निकलकर ऐबा के पीछे बहुत से मुसलिह जवानों को देखा, तब उसका रंग उड़ गया था और चेहरे पर कुछ परेशानी के आसार बिखर गए थे। इसी दौरान ऐबा ने उसे मुखातब किया, तुम्हारा बाप कहाँ है? गुलचंद जवाब में कुछ कहने ही वाला था कि आए मुसील हमने धर्मदत्त भी दरवाजे पर नमूदार हुआ और वो भी ऐबा को देखकर खुश हुआ और उसने ऐबा को बैठने की पेशकश की। ऐबा हवेली में दाखिल हुआ, मुसलिह जवान वही गली के अंदर खड़े रहे। धर्मदत्त और गुलचंद दोनों गली से मुलहिका कमरे में उसे ले गए, जिसका दरवाजा गली में भी खुलता था। जब तीनों नशिस्तों पर बैठ गए तब ऐबा ने गुफ्तगू का आगाज किया और धर्मदत्त को मुखातब करते हुए कहने लगा, धर्मदत्त, मैं तुम दोनों बाप बेटे से एक सवाल करने लगा हूँ, झूठ ना कहना। मेरे सामने अपने कबायली सरकशी और लामज़हब लोगों जैसे तासुब और अनापरस्ती का इजहार भी ना करना। यहाँ तक कहते कहते ऐबा को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि धर्मदत्त फौरन बोल उठा, आपको गलत फहमी हो चुकी है। मेरा नाम कभी धर्मदत्त और मेरे बेटे का नाम गुलचंद हुआ करता था, अब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं, मुसलमान है, ना हम में कोई तासुब है, ना आला और अरफा की बू। आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ जो कुछ पूछेंगे सच कहूँगा। ऐबा जहाँ धर्मदत्त के इस इंकिशाफ पर खुश हुआ, वहाँ उसे किसी कदर इत्मीनान भी हो गया। कहने लगा, शुंगुल नाम की तुम्हारी एक बेटी थी, उसका तुम लोगों ने क्या किया? शुंगुल का नाम सुनकर धर्मदत्त और गुलचंद दोनों फिक्रमंद, उदास और अफसरदा हो गए। फिर धर्मदत्त कहने लगा, साहिब क्या पूछते हैं? मुझसे अपनी एक लौती बेटी के हक में बड़ा जुल्म हुआ। वो इस वक्त घर से भागी जब हमने इस्लाम कबूल नहीं किया था, इसलिए कि हम दोनों बाप बेटे उसे बेचना चाहते थे, लेकिन हो बुरा वक्त का। उस वक्त जाहिलियत हम पर पूरी तरह सवार थी। माँ बेटी और बीवी के रिश्तों की तकद्दुस का एहसास नहीं था। अब इस्लाम कबूल करने के बाद हमने जाना है कि औरत का इस्लामी माशरे में बहुत बड़ा मकाम है और उसकी बड़ी कदर और मंजिलत है। अब हमें अपनी बेटी की बहुत याद आती है। घर से भागने के बाद न जाने वो बेचारी कहाँ कहाँ धक्के खाती रही होगी, किसी अंधे कुएं में कूदकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया होगा, या बेचारी ने मजबूर होकर किसी का घर आबाद कर लिया होगा। धर्मदत्त की आंखों से उस मौके पर आंसू तान झांक करने लगे थे। गुलचंद की आंखें भी नमनाक हो गई थी।
धर्मदत्त जब खामोश हुआ तब हैरानी और परेशानी का इजहार करते हुए ऐबा कहने लगा, इसका मतलब है तुम दोनों ने शुंगुल को कत्ल नहीं किया, इसके कातिल कोई और है। इन अल्फाज पर धर्मदत्त और गुलचंद दोनों एक तरह से अपनी नशिस्तों पर उछल गए। फिर गुलचंद ने बड़ी बेचैनी का इजहार करते हुए कहना शुरू किया, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बहन कहाँ कैसे कत्ल हुई? किसने उसे कत्ल किया? उसकी लाश कहाँ है? किस जालिम ने उसे मार दिया? गुलचंद के इन अल्फाज के जवाब में ऐबा ने बड़े दुख और तासुब भरे अंदाज में शुंगुल के लश्कर में पनाह लेने, फिर शुंगुल को उसके करीब आने और शादी कर लेने के तमाम वाकयात के अलावा पड़ाव में उसके कत्ल किए जाने की तफसील भी दोनों बाप बेटे से कह दी थी। ऐबा की इस इंकिशाफ पर दोनों बाप बेटे कुछ देर तक कुछ ना बोल सके। दुख गम में अपनी गर्दनों को उन्होंने झुकाए रखा। फिर धर्मदत्त टूटी बिखरती आवाज में ऐबा को मुखातब करके कहने लगा, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी बेटी को अपने यहाँ पनाह दी, उससे शादी की। ये खबर यकीनन हमारे रूह फरसा है कि उसे किसी ने कत्ल कर दिया है। आपकी मेहरबानी हम दोनों बाप बेटे के अलावा किसी और से जिक्र ना कीजिएगा कि शुंगुल कत्ल हो चुकी है, वरना उसकी बूढ़ी माँ ये खबर सुनती ही दम तोड़ जाएगी। इसकी माँ ने अभी तक अपने दिल में यही खबर बसा रखी कि उसकी बेटी घर से भाग गई है। किसी का घर उसने आबाद कर लिया होगा और जिंदगी के अच्छे दिन गुजार रही होगी, लेकिन उसे अगर खबर हो गई कि उसे कत्ल कर दिया गया तो बच ना पाएगी। यहाँ तक कहने के बाद धर्मदत्त रुका। फिर बिखरती आवाज में वो कह रहा था, हमारी बदकिस्मती कि हम बेदीन लामहजब लोग थे, सरेआम अपनी बेटियों का सौदा करते थे। अब हम इस वक्त को याद करते हैं तो शर्म आती है। अपने उस दौर के जीने पर लानत भेजने को दिल करता है। माशरे में कितना घिनौना जुल्म और जबर था कि बाप बेटा अपनी ही बेटी और बहन का हाथ पकड़कर गली में खड़े हो जाते थे और उसका सौदा लगाते थे, उसकी कीमत वसूल करते थे और उसे अजनबियों के हवाले करते थे। अब जब हम इस घिनौने फेल को याद करते हैं तो जिस्म के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कहने के बाद धर्मदत्त रुका, कुछ सोचा, फिर कहने लगा, मैं समझ गया हूँ मेरी बेटी का कातिल कौन है। ऐबा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, बताइए शुंगुल को किसने कत्ल किया है? अगर आप जानते हो तो फिर हमें बताइए। धर्मदत्त कुछ देर तक अपनी आंखें साफ करता रहा, फिर कहने लगा, हमारी बस्ती में हर साल खाना बदोश सौदागरों का एक गिरोह आता है। उसे एक खाना बदोश कबीले ही समझ लीजिए। वो ठुंडोर नगर खरीदने का कारोबार करते हैं। एक जगह से जानवर खरीद के दूसरी जगह महंगे दामों में फरोख्त करके खूब कमा लेते हैं। अपनी जिंदगी खाना बदोशाना ही बसर करते हैं। दरिया चिनाब के किनारे किनारे वो ओस से लेकर सियालकोट तक सफर करते रहते हैं। उन्हीं इलाकों के अंदर एक जगह से जानवर खरीदते हैं, दूसरी जगह फरोख्त करते चले जाते हैं। मेरा अंदाजा है कि इसी कबीले के सरदार ने मेरी बेटी को कत्ल कराया होगा। मेरा अंदाजा है कि पहले उसने आपकी पड़ाव में मेरी बेटी को उठवाने की कोशिश की होगी और जब उसके आदमी उसे उठा नहीं सके होंगे तो फिर उसे मौत की घाट उतार दिया गया होगा। इसके अलावा और ये कोई काम नहीं कर सकता। यहाँ तक कहने के बाद धर्मदत्त रुका, फिर इंतहाई दुख और अफसोस में कहने लगा, मेरी बदबख्ती, इन्हीं खाना बदोश सौदागरों का सरदार मेरी बेटी को पसंद करता था। वो हर साल यहाँ से गुजरते थे। चंद साल पहले उसकी नजर कहीं मेरी बेटी पर पड़ी गई। मेरी बेटी उस वक्त खेतियों से लौट रही थी। उसे देखते ही वो उस पर टूट पड़ा होगा और उसे पसंद करने लगा। अपने आदमी मेरी बेटी के पीछे लगाया और घर देख लिया। उसके बाद खुद मेरे घर आया और मेरी बेटी की कीमत लगाई। इतनी कीमत लगाई जिसका मैं सोच भी नहीं सकता था। उस वक्त हम लादीन और लामहजब थे। मैंने उसकी पेशकश को कबूल कर लिया और बेटी उसके हवाले कर देने का तहिया कर लिया। लेकिन इस सारी कार्रवाई को मेरी बेटी ने भी सुन लिया और वो घर से भाग गई। लेकिन वो सौदागर फिर भी उस सौदे से बाज न आया। मेरी बेटी शुंगुल के घर से भाग जाने के बाद उसने फिर मुझसे राब्ता किया और कहने लगा, वो मेरी बेटी शुंगुल घर से भाग गई है, उसके बावजूद वो उसे हासिल करके रहेगा। साथ ही उसने जिस कदर रकम का सौदा मेरी बेटी के सिलसिले में किया हुआ था उसका चौथा उसने मुझे अदा कर दिया और जाते जाते ये कहा कि अब शुंगुल उसकी है, वो उसको खुद तलाश करेगा, जहां भी मिलेगी उसकी मिल्कियत होगी। हमारी बदकिस्मती में जाहिलियत और लामजहब का दौर था। हम मान गए, उसके बाद मेरे ख्याल में शुंगुल को तलाश करता रहा होगा। गोया हम भी इस मामले को फरामोश कर बैठे। इसके बाद उसने मेरी बेटी के साथ क्या मामला किया ये तो वो खुद ही बता सकता है। धर्मदत्त जब खामोश हुआ तब बड़े गौर से उसकी तरफ देखते हुए ऐबा कहने लगा, पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि ढूंढूर नगरों के इस सौदागर का नाम क्या है और ये आप लोगों के अंदाज के मुताबिक इस खाना बदोश कबीला इन दोनों कहाँ मिल सकता है? जवाब में धर्मदत्त ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, उस सौदागर का नाम तो राइथा है। इस वक्त मेरे ख्याल में वो सोहिदरा के गिरदो नवाह में होगा, इसलिए कि एक महीने पहले
इसलिए कि 1 महीने पहले हमारे इलाकों के अंदर उसके खाना बदोश कबीले ने पड़ाव किया था और यहाँ से उठकर वो शुमाल की तरफ गए थे। सोहेदरा में वो ज़्यादा दिन क्याम करता है, इसलिए कि वो एक बड़ी और तारीखी शहर है और वहाँ उनका कारोबार खूब चमकता है। धर्मपद जब खामोश हुआ तब अयबा अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, क्या ऐसा मुमकिन है कि आप दोनों किसी को मेरे साथ भेज दें जो इस खाना बदोश कबीले तक मेरी रहनुमाई करे? अयबा के अल्फाज के जवाब में गुलचंद जुस्त लगाने के अंदाज में अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, रायता मेरी बहन का कातिल है। अगर ये हरकत वो इसी वक्त करता जब हम लामज़हब थे तो शायद हम उसका कोई तासुर न लेते, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद मैं समझता हूँ रायता को ठिकाने लगाना अपना फर्ज ख्याल करता हूँ। मैं उस खाना बदोश कबीले तक आपकी रहनुमाई करूंगा। अयबा खुश हो गया था। फिर गुलचंद को लेकर वो निकला और अपने मुसलिह जवानों के साथ दरिया चिनाब के किनारे किनारे उस शुमाल की तरफ बढ़े थे। लगभग 5 मील शुमाल की तरफ जाने के बाद सामने कश्तियों का एक पुल आ गया था। वहां गुलचंद रुक गया और अयबा को मुखातब करके कहने लगा, इस पुल को पार करने के बाद अब हमें दरिया की दूसरी तरफ जाना होगा, इसलिए कि सोहेदरा शहर दरिया के बाएं किनारे पर वाक़ है। इसके साथ ही गुलचंद की रहनुमाई में अयबा अपने दस्तों के साथ कश्तियों का पुल पार करके दरिया चिनाब की दूसरी सिमत चला गया था। उसके बाद दोबारा उन्होंने शुमाल की सिमत बढ़ना शुरू किया। गुलचंद कुछ दूर आगे जाने के बाद उस शाहिरा के किनारे रुक गया जो सोहेदरा के पास से गुजरती हुई सियालकोट की तरफ जाती थी, और फिर वो अपने बाएं जानिब एक खीमागाह की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, तो सामने रायता के एक खाना बदोश कबीले का पड़ाव है। गुलचंद की इन अल्फाज पर अयबा खुश हो गया था। फिर गुलचंद को मुखातब करके कहने लगा, गुलचंद तुम अपने घोड़े ही पर सवार रहो, मेरे लश्करी तुम्हें एक कंबल मुहैया करता है। अपना चेहरा अपना जिस्म सारा कंबल से ढांक कर रखना, अपनी आंखें नंगी रखना। मेरे सामने आए रायता जब मेरे सामने आए तो बस आंख के इशारे से मुझे बता देना कि रायता है, इसके बाद मैं जानूं और रायता जाने। अयबा के अल्फाज से गुलचंद खुश हो गया था। अयबा के कहने पर उसके एक लश्करी ने गुलचंद को एक कंबल मुहैया की, जिससे उसने अपने जिस्म के अलावा अपने चेहरे भी ढांप लिया था। इसके बाद अपने साथियों को लेकर अयबा उस खाना बदोश कबीले की खिमागाह की तरफ बढ़ा। उस खाना बदोश कबीले के लोगों ने जब देखा कि बहुत से मुस्लिम जवान घोड़ों पर सवार होकर खिमागाह का रुख कर रहे हैं तो बड़े परेशान हुए। खिमागाह से कुछ लोग भागते हुए निकले, अयबा की तरफ आए और उनमें से एक बूढ़ा अयबा को मुखातब करके कहने लगा, आप लोग कौन हैं? क्यों हमारे खिमागाह का रुख कर रहे हैं? ये जो तुम अपने मुस्लिम जवानों के आगे हो तो मैं समझता हूँ कि तुम ही इनके सरगर्दा और इनके सरखील हो। वो शख्स जब खामोश हुआ तब इंतहा नरमी और लजाजत में मुखातब करके अयबा कहने लगा, तुम्हें परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैं दरअसल तुम्हारे सरदार रायता से मिलने के लिए आया हूँ। तुम में से कोई जाए और उसे जाकर कहे कि उससे मिलने वाले कुछ लोग आए हुए हैं। उनमें जवानों के साथ तुम्हारी खिमागाह में दाखिल होना चाहता हूँ, नहीं चाहता। मैं इन जवानों के साथ तुम्हारी खिमागाह में दाखिल नहीं होना चाहता। अयबा के अल्फाज के जवाब में उनमें से एक शख्स खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, मैं अभी उसे यहाँ बुला कर लाता हूँ। इसके साथ वो भागता हुआ खीमे के अंदर दाखिल हो गया। उसके जाने के बाद एक छोटे सालार को अयबा ने एक मखसूस इशारा किया। ये इशारा पाकर वो मुस्लिम जवान बड़ी तेजी से हरकत में आए और खीमागाह के चारों तरफ बिखर गए। इस तरह एक तरह से उन्होंने खीमागाह की गिर्द हिसार बना लिया था। थोड़ी देर बाद वो शख्स लौटा, उसके साथ ढलती हुई उम्र का एक शख्स था। जब वो करीब आए तब जो शख्स बुलाने गया था वो कहने लगा, ये हमारा सरदार रायता है। अयबा अपने घोड़े से उतर गया। उसके इशारा पाने पर गुलचंद घोड़े पर ही बैठा रहा। ताहम अयबा के करीब रहा। साथ ही गुलचंद ने आंख का इशारा अयबा को दे दिया था कि रायता वही है। जब वो घोड़े से उतरा तो उसके साथ जो मुस्लिम जवान थे वो भी उसके इर्द गिर्द फैल गए। रायता के सामने आने के बाद अयबा ने उसे मुखातब किया, रायता मैं झूठ सुनने का आदी नहीं। झूठ बोलेंगे तुम्हारे इन सारे साथियों बल्कि खाना बदोश कबीले के सब लोगों को यहाँ बुलाकर उनके सामने तेरी जुबान काट दूंगा। ये करो, शुंगुल को किन लोगों ने कत्ल किया? जिन लोगों के जरिए तूने उसे कत्ल करवाया उन्हें बाहर बुलाओ। यहाँ तक कहने के बाद अयबा रुका, फिर हाकिमाना अंदाज में कहने लगा, किसी को यहाँ से भागने और छुपाने की कोशिश की तो देखो मेरे मुस्लिम जवान तुम्हारी खिमागाह के चारों तरफ फैल गए हैं। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो तीरों से छलनी कर दिया जाएगा। अगर तुमने मेरे साथ हकीकत से काम ना लिया तो मैं तुम्हारी खिमागाह को आग लगा कर जलाऊंगा। इन आदमियों को बुलाओ जिनके जरिए तुमने शुंगुल को कत्ल कर दिया था। कुछ कहने के लिए रायता हकलाने लगा था। अयबा खा जाने वाले अंदाज में फिर बोल उठा,
झूठ मत बोलना वरना खड़े खड़े गर्दन काट कर रख दूंगा। ये शख्स जो तुम्हें बुलाने गया था उनमें से उससे उन आदमियों के नाम कहो जो उन्हें बुलाकर लाएगा। इस पर रायता ने उसके कान में कुछ कहा जिसे सुनकर वो खीमा के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद 3 जवान खीमे से बाहर निकले। रायता करीब आ खड़ा हुआ। उनके आने पर अपने कुछ मुसले जवानों को अय्यूबा ने मखसूस इशारा किया। ये इशारा पाते हुए लगभग 10 से 15 आदमियों ने अपनी तलवारें बेनियाम कर ली थी। इसलिए कि आने वाले तीनों जवान मुसलह थे। जब वो तीनों जवान करीब आए तब खा जाने वाले अंदाज में अय्यूबा ने उनकी तरफ देखा, कहने लगा, अपने कमर पर बंधे हुए हथियार खोलकर एक तरफ फेंक दो वरना अपने दाएं बाएं देखो, मेरे साथी तुम्हारी तक्का बूटी करके रख देंगे। अय्यूबा के इन अल्फाज ने उन पर खौफ तारी कर दिया था। उन्होंने अपनी तलवारों और खंजरों की पट्टियां खोलकर दूर फेंक दी। फिर रायता की तरफ देखते हुए अय्यूबा कहने लगा, रायता क्या यही तीनों शुंगुल के कातिल हैं? अय्यूबा के इन अल्फाज पर रायता ने इस बात में गर्दन हिलाई। तब कि उन तीनों के चेहरों पर उदासी छा गई थी। जो ही रायता ने इस बात में गर्दन हिलाई, अपने मुसलिह जवानों को अय्यूबा ने एक आंख का इशारा किया। ये इशारा होना था कि अय्यूबा के कुछ मुसलिह जवान हरकत में आए और उन तीनों को उन्होंने गर्दन काट कर रख दी थी। ये मंजर देखते हुए खाना बदोशों के सरदार रायता का रंग सरसू और हल्दी होकर रह गया था। उन तीनों का खात्मा करने के बाद अय्यूबा ने रायता की तरफ देखा और उसे मुखातब करके कहने लगा, रायता, मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। अगर तुम शुंगुल को हासिल करना चाहते थे तो उसके माँ बाप के घर से हासिल करते। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता था कि जब उसने अपने घर से भाग कर किसी से शादी कर ली थी तो तुम उसे उठवाने की कोशिश करो, और जब उसने उठने से इनकार कर दिया तो तुम्हारे इन तीनों साथियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। तुम चूंकि जुर्म में बराबर के शरीक हो, लिहाजा सजा से बच नहीं सकते। इसके साथ ही अय्यूबा खुद रायता की तरफ बढ़ा, झटके के साथ तलवार बेनियाम की और तलवार बुलंद करके गिराई और रायता का काम तमाम करके रख दिया। इन चारों को खत्मा करने के बाद अपने मुसलिह जवानों के साथ अय्यूबा खाना बदोशों के करीब गया और बुलंद आवाज में उन्हें मुखातब करके कहने लगा, खाना बदोशों, तुम्हारे सरदार रायता ने अपने 3 ओपाशों के साथ मिलकर एक लड़की को नाहक कत्ल किया था। वो लड़की किसी की बीवी थी, ये उस पर कब्जा करना चाहता था। रायता और उसकी तीनों ओपाशों को कत्ल कर दिया गया है। एक बात अपने जहन में बिठा कर रखना, तुम में से अगर किसी ने भी आने वाले दिनों में रायता या इन तीनों मरने वाले साथियों का इंतकाम लेने की कोशिश की या रायता के इस बुरे फेल को दोहराना चाहा तो मैं न सिर्फ उसके खीमागाह को आग लगाऊंगा बल्कि तुम्हारे खीमागाह की जिस कदर अफराद हैं सबको तहे तेज करके रख दिया जाएगा। कबीले वालों की तरफ से किसी रद्द अमल का इजहार न हुआ। इसके बाद अय्यूबा ने अपने एक लश्करी को दौड़ाया जिसने खाना बदोश कबीले का घिराव करने वाले अपने साथियों को वापस आने के लिए कहा। इस तरह अय्यूबा के सारे लश्करी एक बार सिमट कर उसके पास जमा हो गए। इसके बाद अय्यूबा वापस हो लिया था। इन खाना बदोशों के कबीले से थोड़ा दूर जाकर अय्यूबा रुका और गुलचंद को मुखातब करते हुए कहने लगा, गुलचंद, अब कंबल उतार दो, अब तुम्हें कोई नहीं पहचान सकता। मैंने तुम्हें कंबल इसलिए उड़ाई थी ताकि तुम उन लोगों की निगाह में ना हो। उन्हें यह नहीं पता होना चाहिए कि यहाँ तक तुमने मेरी रहनुमाई की है, रायता की शख्सियत से भी आगाह किया है। इस तरह मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते थे। इसी बिना पर मैंने तुम्हें अपना चेहरा ढांपने के लिए कहा था। अय्यूबा ने अब अपने साथियों के साथ वापसी का सफर शुरू किया था और दरिया चिनाब के बाएं किनारे के साथ साथ वो जुनूब की तरफ बढ़ते चले गए थे। कश्तियों के जिस पुल से वो दरिया के दाएं किनारे से बाएं किनारे की तरफ गए थे उसे इस्तेमाल नहीं किया। इससे आगे बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि वो कश्तियों के उस पुल के पास गए जिसके जरिए दरिया को अबूर करने के लिए अय्यूबा ने धर्मदत्त और गुलचंद की बस्ती का रुख किया था। कश्तियों के दूसरे पुल के पास अय्यूबा रुक गया। उसके रुकने पर उसके साथ जो उसके लश्करी थे उन्होंने भी अपने घोड़े की बागें खींच ली थी। इस मौके पर गुलचंद को मुखातब करते हुए अय्यूबा कह रहा था, गुलचंद, कश्तियों के इस पुल को पार करके तुम अपनी बस्ती की तरफ चले जाओ। मैं जिस काम के लिए आया था उसे अंजाम दे चुका हूँ और मेरा यहाँ ठहरना और क़याम करना फजूल है। बहरहाल मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाप का शुक्रगुजार हूँ कि तुम लोगों ने मुझसे ताउन किया और रायता तक मेरी रहनुमाई की। अगर तुम लोग ऐसा ना करते, यहाँ तक कहते अय्यूबा को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए गुलचंद बोल उठा, अय्यूबा मेरे अजीज, पहले तो मैं इस खुदावंद कुद्दूस का इंतहा दर्ज का ममनून हूँ जिसने हमें जाहिलियत से निकालकर रोशनी की मंजिलों से हम किनार किया। तुमने चूंकि शुंगुल से शादी कर ली थी, इस बिना पर तुम्हारी जात अब हमारे लिए काबिल एहतराम और इंतहा दर्जे की मुहतरम है। इसी मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ऐसा मुमकिन है कि आप अपने साथियों के साथ हमारे बस्ती की तरफ चले और आज के शब हम आपकी मेहमान नवाजी करें।
गुलचंद के इन अल्फाज के जवाब में ऐबा मुस्कुराया। अपने घोड़े को आगे बढ़ाकर उसने गुलचंद की पीठ थपथपाई, फिर कहने लगा, गुलचंद मेरे अजीज, ऐसा क्यों कि मुमकिन नहीं। मेरे साथ देखो कितने मुसले जवान है, इनकी ज़ियाफत कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा मुझे फिलफौर अपने लश्कर में पहुंचना है। जवाब में गुलचंद मुस्कुरा कहने लगा, आप अपने साथियों के ज्यादा होने की बिल्कुल फिक्र ना करें। मेरा बाप इस बस्ती का सरदार है और हम इससे ज्यादा लोगों की भी आओ भगत और तवाज़ु और ज़ियाफत का एहतमाम कर सकते हैं। एक बार फिर आगे बढ़कर ऐबा ने उसका शाना थपथपाया और कहने लगा, गुलचंद तुम्हारी मेहरबानी, अब तुम मेरे देखते ही देखते पुल पार करो, अपनी बस्ती की तरफ चले जाओ, इसके बाद मैं यहाँ से कूच करूंगा। ऐबा के अल्फाज के जवाब में गुलचंद हरकत में आया और अपने घोड़े को उसने पेड़ लगाई और फिर कश्तियों की उस पुल के जरिए वो दरिया को अबूर कर रहा था, जबकि ऐबा ने अपने साथियों के साथ मशरिक की सिमत पर बड़ी तेजी से फासलों को सिमटता हुआ तराइन के मैदानों की तरफ अपने लश्कर का रुख किए हुए था। रात गहरी होने लगी थी। देवदास और संग्राम दोनों सूरज गुरूब होने तक दरिया सरस्वती के किनारे किनारे अपने घोड़ों को सर पर दौड़ा रहे थे। ये उनके रोजमर्रा और मामूल का काम था। घुड़दौड़ से वापस आने के बाद उन्होंने अपने घोड़ों को अस्तबल में बांधा, उनसे जेल और धाने अलहदा की। कुछ देर तक दोनों अपने घोड़ों को खिराते रहे। इसके बाद दोनों ने मिलकर खाना खाया। जब देवदास वहां से उठने लगा तब उसका बाजू पकड़कर संग्राम ने अपने पास बिठा लिया और जुस्तजू भरे अंदाज में उसे मुखातब करके कहने लगा, अब किधर जाओगे? मेरे ख्याल में तो चलो अब चलकर आराम करते हैं। जब संग्राम ने उसका बाजू पकड़कर खींचा तब देवदास फिर अपनी नशिस्त पर बैठने पर मजबूर हो गया था। फिर संग्राम को मुखातब करके कहने लगा, भाई मैं थोड़ी देर तक लौट कर आता हूँ, मैं जरा कुमार देवी से मिलकर आऊँ, इसलिए कि आज शाम तक मैंने उससे मोहलत दी थी। भाई अब मैं इस मामले से बिल्कुल तंग आ चुका हूँ, मेरी बेजारी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। आज अगर उसने मुझे कोई मजबूत और फैसलाकुन जवाब न दिया तो मैं रोज रोज के फैसले वादे व ईद का खात्मा ही कर दूंगा। ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। मैं उस कुमार देवी का खात्मा करके उसकी लाश दरिया सरस्वती में फेंक दूंगा और अपने मन में ठान लूंगा कि कुमार देवी से कभी मेरी मुलाकात हुई ही नहीं थी। जो लड़की इस तरह अपनी हर धर्मी पर कायम रहने वाली हो वो किसी की बात मानने में ही नहीं आने वाली। इससे किसी बेहतर और अच्छी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। यहाँ तक कहने के बाद जब देवदास खामोश हुआ तब संग्राम बड़े गौर से उसकी तरफ देखता रहा। फिर उसकी गर्दन झुक गई, कुछ सोचने लगा। उसके बाद देवदास को मुखातब करके कहने लगा, देवदास मैं तुम्हें इसके पास जाने से रोकता नहीं, लेकिन उसके पास जाने से पहले तुमसे जरूर कहूंगा कि इसके साथ नरम सलूक रखना, सख्ती से पेश न आना। देखो सख्ती के नताइज तुम्हारे हक में नहीं होंगे, फिर तुम उससे मौत के घाट उतार कर उसका खात्मा कर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुमने जो इतनी जद्दोजहद की से उठाकर यहाँ लाए, अपने पास रखा, उसका नतीजा क्या यही निकलना चाहिए कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाए? यहाँ तक कहने के बाद संग्राम रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा था, देवदास मैं समझता हूँ इसे यहाँ लाकर हमने उसे मुनासिब सुलूक नहीं किया। अगर हम उससे इस तरीके के साथ अपने साथ मिलाने की कोशिश करते तो मेरे ख्याल में अब तक वो तुम्हें अपनी जिंदगी अपने जीवन का साथी बनाने के लिए तैयार हो जाती। यहाँ तक कहने के बाद संग्राम रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा था, देवदास यहाँ लाने के बाद तुमने उसे कैदी की तरह 2 कमरों के अंदर बंद करके रख दिया है। उसे तुम बाहर की हवा तक लगने नहीं देते। इस तरह वो ये महसूस कर रही है कि उसे एक तरह के हब्स बेजा में रखा हुआ है। अगर यहाँ लाने के चंद दिन या चंद हफ्ते बाद तुम उसे अपने एतमाद में लेने के लिए उसे अपने साथ दरिया सरस्वती के किनारे किनारे घुड़दौड़ के लिए ले जाया करते और बातों ही बातों में उसे अपने करीब लाने की कोशिश करते तो मैं समझता हूँ इस मामले में कामयाब हो चुके होते। लेकिन मेरे भाई तुमने ऐसा नहीं किया। जब से वो आई है 2 कमरे में अंदर बंद है। ना उसे कभी हवेली से बाहर निकाला गया, उसे यूं रखा गया जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई माफूकुल फितरत मखलूक है जिसे अगर बाहर निकाला गया तो वो हवा की तरह तहलील होकर रह जाएगी। तुमने उसे मुजरिम की तरह उन 2 कमरों में बंद करके रखा है। उसे कम अज कम बाहर निकालते, अपने साथ सैर तफरीह के लिए ले जाया करते तो मैं समझता हूँ आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। संग्राम रुका, फिर मजीद कहते हुए बात आगे बढ़ा रहा था, देवदास जो बातें मैं कह रहा हूँ इन बातों की तरफ इशारा में मैं पहले भी कई बार तुमसे कर चुका हूँ, लेकिन कभी तुमने इन पर अमल करने की कोशिश नहीं की। अब अगर तुम इसके पास जा रहे हो तो नरमी से उसके साथ गुफ्तगू करना, सिपाट और सख्त लहजे में उसे धमकी ना देना। अगर वो तुम्हारे साथ शादी करने पर तैयार ना हुई तो तुम उसे मौत के घाट उतार दोगे। इस तरह तो अकड़ जाएगी, मौत की भी परवाह नहीं करेगी। संग्राम बोलता रहा, देवदास खामोश रहकर उसकी बात सुनता रहा। संग्राम जब खामोश हुआ तब इंतहाई बेबसी में वो संग्राम की तरफ देखते हुए कहने लगा, फिर तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो अब इस मामले में बिल्कुल तंग आ चुका हूँ। संग्राम मुस्कुरा कहने लगा, तुम ऐसा करो, आज का चूंकि
वादा है, लिहाजा तुम उसके पास जाओ, लेकिन नरमी में उसके साथ गुफ्तगू करना और उसे समझाने की कोशिश करना, लट्ठी मारने से काम नहीं लेना। बहरहाल अब तुम जाओ और उससे बात करो और फिर आकर बताओ कि उसका क्या रद्द अमल है।